آپ دیکھ رہے ہیں تعلیم دین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو صحیح سمے پر مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جبکہ نماز کی 6 شرائط یعنی پہلی طہارت، دوسری ستر عورت، تیسرا وقت، چوتھا استقبال قبلہ، پانچواں نیت، چھٹا تکبیر تحریمہ کے مسائل بیان ہو چکے تو نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو قبلہ کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑا ہو کہ دونوں پنجے میں 4 انگلی کا فاصلہ رہے اور دونوں ہاتھ کان تک لے جائے کہ انگوٹھا کان کی لو سے چھو جائے، باقی انگلیاں اپنے حال پر رہے، نہ بالکل ملی ہوئی نہ بالکل پھیلی، اور ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہو اور نگاہ سجدہ کی جگہ پر، اور جس وقت کی جو نماز پڑھتا ہو دل میں اس کا پکا ارادہ کر کے اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لا کر ناف کے نیچے باندھ لے۔ اس طرح کی دائنی ہتھیلی کی گدی بائیں کلائی کے سرے پر ہو اور بیچ کی 3 انگلیاں بائیں کلائی کی پیٹھ پر، اور انگوٹھا اور چھوٹی انگلی کلائی کے اگل بگل، اور ثنا پڑھے یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر تعوذ پڑھے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر تسمیہ پڑھے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر الحمد شریف پوری پڑھے اور ختم پر آہستہ سے آمین کہے۔ اس کے بعد کوئی سورت یا 3 آیت پڑھے یا ایسی ایک آیت پڑھے جو 3 آیتوں کے برابر ہو۔ اب اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے اور گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑے، اس طرح کی ہتھیلیاں گھٹنے پر ہو اور انگلیاں خوب پھیلی ہو اور پیٹھ بچھی ہو اور سر پیٹھ کے برابر ہو، اونچا نیچا نہ ہو اور نظر پیر کی طرف ہو، اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہے۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے۔ جو منفرد یعنی اکیلا ہو تو اس کو بعد اللہم ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ کہے۔ پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، اس طرح کہ گھٹنا زمین پر رکھے، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ سر رکھے، اس طور پر کہ پہلے ناک تب ماتھا اور ناک کی ہڈی زمین پر جم جائے اور نظر ناک کی طرف رہے، اور بازوؤں کو دونوں کروٹوں سے، پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھے، اور پاؤں کی سب انگلیوں کو قبلہ کی طرف رکھے، اس طرح کی انگلیوں کا سارا پیٹ زمین پر جمع رہے اور ہتھیلیاں بچھی ہو اور انگلیاں قبلہ کی طرف ہو، اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلی کہے۔ پھر سر اٹھائے، اس طرح کی پہلے ماتھا، پھر ناک، پھر منہ، پھر ہاتھ اور داہنا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کرے، اور بایاں قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھا بیٹھ جائے اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھے کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں قبلہ کو ہو اور انگلیوں کا سرا گھٹنا کے پاس ہو۔ پھر ذرا ٹھہر کر اللہ اکبر کہتا ہوا دوسرا سجدہ کرے، یہ سجدہ بھی پہلے کی طرح کرے۔ پھر سر اٹھائے اور ہاتھ کو گھٹنے پر رکھ کر پنجوں کے بل سے کھڑا ہو جائے۔ اٹھتے وقت بلا عذر ہاتھ زمین پر نہ ٹیکے۔ یہ ایک رکعت پوری ہو گئی۔ اب پھر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد اور سورت پڑھے اور پہلے کی طرح رکوع اور سجدہ کرے۔ پھر جب دوسرے سجدہ سے سر اٹھائے تو داہنے قدم کھڑا کر کے بایاں قدم بچھا کر بیٹھ جائے۔ پھر التحیات پڑھے، تحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھے۔ اس کو تشہد کہتے ہیں۔ جب کلمہ لا کے قریب پہنچے تو داہنے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائے اور چھوٹی انگلی اور اس کے پاس والی انگلی کو ہتھیلی سے ملا دے اور لفظ لا پر کلمہ کی انگلی اٹھائے مگر ادھر ادھر نہ ہلائے اور اللہ پر گرا دے اور سب انگلیاں فوراً سیدھی کر لے۔ اب اگر 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنا ہے تو اٹھ کھڑا ہو اور اسی طرح پڑھے، مگر فرض کی ان رکعتوں میں الحمدو کے ساتھ سورہ ملانا ضروری نہیں۔ اب پچھلا قاعدہ جس کے بعد نماز ختم کرے گا، اس میں تشہد کے بعد درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پڑھے۔ پھر اللہم اغفر لی والوالدی ولمن توالد والجمیع المومن والمومنات والمسلمین والمسلمات احیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوت برحمتک یا ارحم الراحمین پڑھے، یا کوئی اور دعائے معصورہ پڑھے، یا یہ پڑھے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور اس کو بغیر اللہم کے نہ پڑھے۔ پھر داہنے
शाना की तरफ मुंह करके अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहे, फिर इसी तरफ बाई तरफ। अब नमाज खत्म हो गई। इसके बाद दोनों हाथ उठाकर कोई दुआ मसलन अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरत हसनतों व कीना अज़ाबन नार पढ़े और मुंह पर हाथ फेर ले। यह तरीका इमाम या तन्हा मर्द के पढ़ने का है, लेकिन अगर नमाजी मुक्तदी हो यानी जमात के साथ इमाम के पीछे पढ़ता हो, किरत न करे यानी अलहम्द शरीफ और सूरह न पढ़े, चाहे इमाम जोर से किरत करता हो या आहिस्ता, इमाम के पीछे किसी नमाज में किरत जायज नहीं। और अगर नमाजी औरत हो तो तकबीर तहरीमा के वक्त मोढ़े तक हाथ उठाए और बाईं हथेली सीना पर छाती के नीचे रखकर उसके ऊपर दाहिनी हथेली रखे, रुकू में थोड़ी झुके यानी सिर्फ इतना कि घुटनों पर हाथ रख दे, जोर न दे, और हाथ की उंगलियां मिली रहें और पीठ और पांव झुके रहें, मर्दों की तरह खूब सीधी न कर दे और सजदा में सिमट कर सजदा करे यानी बाजू करवटों से मिला दे, पेट रान से, रान पिंडलियों से और पिंडलियां जमीन से मिला दे और दोनों पांव पीछे निकाल दे और कादा में दोनों पांव दाहिनी जानिब निकाल दे और भाई सुरीन पर बैठे और हाथ बीच रान पर रखे। फर्ज, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब का हुक्म। इस तरीका में बाज चीजें फर्ज हैं, इसके बगैर नमाज होगी ही नहीं। बाज वाजिब है, इसको कसदन छोड़ना गुनाह और नमाज का फिर से पढ़ना वाजिब, और भूल कर छूटने से सजदा सहव वाजिब। और बाज सुन्नत मौक़िदा है कि जिसको छोड़ने की आदत गुनाह है। बाज मुस्तहब है कि जिसका करना सवाब और न करना गुनाह नहीं। फराइज़ नमाज, 7 चीजें नमाज में फर्ज हैं। तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर जिससे नमाज शुरू होती है। कयाम यानी इतनी देर खड़ा रहना जितनी देर में फर्ज किरत अदा हो। किरत यानी कम से कम एक आयत पढ़ना। रुकू यानी इतना झुकना कि हाथ बढ़ाए तो घुटने तक पहुंच जाए। सजदा यानी माथे का जमीन पर जमना, इस तरह की कम से कम पाँव की एक उंगली का पेट जमीन से लगा हो। कादाए आखिरा यानी नमाज की रकतें पूरी करने के बाद इतनी देर बैठना कि अत्तहियात रसूलहू तक पढ़ी जा सके। खुरूज भी सुने ही यानी कायदा आखिरा के बाद अपने इरादा व अमल से नमाज खत्म कर देना, ख्वाह सलाम व कलाम से हो या किसी दूसरे अमल से। वाजिबात नमाज, तकबीर तहरीमा में लफ्ज अल्लाहु अकबर कहना, अलहम्दो और उसके साथ सूरह या आयत मिलाना फर्ज की 2 पहली रकतों में और नफल और वितर और सुन्नत की हर रकतों में वाजिब है। अलहम्दो शरीफ का सूरत या आयत से पहले होना, हर रकत से सूरह या आयत से पहले एक ही बार अलहम्दो पढ़ना। अलहम्दो और सूरत के दरमियान आमीन और बिस्मिल्लाह के सिवा और कुछ न पढ़ना। किरत खत्म करके फौरन रुकू करना। एक सजदा के बाद दूसरे सजदा होना कि दोनों सजदों के बीच कोई रुकन न आने पाए। तादीले अरकान यानी रुकू, सुजूद, कौमा, जलसा में कम से कम एक बार सुबहान अल्लाह के बराबर ठहरना। कौमा यानी रुकू से सीधा खड़ा हो जाना। सजदा में हर पांव की 3 उंगलियों के पेट जमीन पर लगना। जलसा यानी 2 सजदों के दरमियान सीधा बैठना। कादे उला अगरचे नमाज नफल हो। फर्ज और वितर और सुनन रवातिब में कादे उला में तशहुद पर कुछ न पढ़ना। दोनों कादों में पूरा तशहुद पढ़ना। यूं ही जितने कादे पढ़ें सब में पूरा तशहुद वाजिब है। एक लफ्ज भी अगर छोड़ेगा तो तर्के वाजिब होगा। दोनों सलाम में फकत लफ्ज अस्सलाम वाजिब है, अलैकुम व रहमतुल्लाह वाजिब नहीं। वितर में दुआए कुनूत पढ़ना। तकबीर कुनूत, ईदैन की 6 तकबीर, ईदैन में दूसरी रकत की तकबीर, रुकू और उस तकबीर के लिए लफ्ज अल्लाहु अकबर कहना। हर जहरी नमाज में इमाम को जहर से यानी जोर आवाज किरत करना और गैर जहरी में आहिस्ता से। हर फर्ज व वाजिब का उसकी जगह पर अदा होना। रुकू का हर रकत में एक ही बार होना और सुजूद का 2 ही बार होना। दूसरी रकत से पहले कादा न करना और 4 रकत वाली में तीसरी पर कादा न होना। आयत सजदा पढ़ी तो सजदे तिलावत करना। सहव हुआ तो सजदे सहव करना। 2 फर्ज या 2 वाजिब या वाजिब व फर्ज के दरमियान 3 बार सुबहान अल्लाह कहने के बराबर देर न होना। इमाम जब किरत करे बुलंद आवाज से हो या आहिस्ता, उस वक्त मुक्तदी का चुप रहना। सिवा किरत के तमाम वाजिबात में इमाम की पैरवी करना। फराइज व वाजिबात के अलावा जो बातें तरीका नमाज में बयान हुई वह या सुन्नत है या मुस्तहब है, उनको कसदन न छोड़ा जाए। अगर गलती से छूट जाए तो न सजदा सहव करने की जरूरत है न नमाज दोहराने की। अगर दोहरा ले तो अच्छा है। सजदा सहव का बयान। सजदा सहव कब वाजिब है? जो चीजें नमाज में वाजिब है उनमें से अगर कोई वाजिब भूल से छूट जाए तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए सजदा सहव वाजिब है। सजदा सहव का तरीका, उसका तरीका यह है कि नमाज के आखिर में अत्तहियात पढ़ने के बाद दाहिनी तरफ सलाम फेर कर 2 सजदे करे और फिर से
शुरू अत्तहियात वगैरह सब पढ़कर सलाम फेर दे। अगर कोई वाजिब छूट गया और उसके लिए सजदे सहव न किया और नमाज खत्म कर दी तो नमाज दोहराना वाजिब है। अगर कसदन कोई वाजिब छोड़ दिया तो सजदे सहव काफी नहीं बल्कि नमाज दोहराना वाजिब है। जो बातें नमाज में फर्ज है अगर उनमें से कोई छूट गई तो नमाज न हुई और सजदे सहव से भी ये कमी पूरी नहीं की जा सकती बल्कि फिर से पढ़ना फर्ज है। किन बातों के छूटने से सजदे सहव नहीं? वह बातें जो नमाज में सुन्नत या मुस्तहब है जैसे ताउज, तस्मिया, आमीन, तकबीराते इंतकाल, तस्बीहात, इनके तर्क से भी सजदे सहव नहीं बल्कि नमाज हो गई मगर नमाज दोहरा लेना बेहतर। एक नमाज में कई वाजिब छूट गए तो एक बार वही 2 सजदे सहव के सबके लिए काफी हैं। चंद बार सजदे सहव करने की जरूरत नहीं। कायदे उला में पूरी अत्तहियात पढ़ने के बाद तीसरी रकत के लिए खड़े होने में इतनी देर की जितनी देर में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद पढ़ सके तो सजदे सहव वाजिब है, चाहे पढ़े या खामोश रहे। दोनों सूरतों में सजदे सहव वाजिब है। किरत वगैरह किसी मौका पर सोचने लगा कि इतनी देर हुई कि 3 बार सुभान अल्लाह कह सके तो सजदे सहव वाजिब है। दूसरी रकत को चौथी समझकर सलाम फेर लिया, फिर याद आया तो नमाज पूरी करके सजदे सहव करे। तादीले अरकान भूल गया, सजदे सहव वाजिब है। मुक्तदी अत्तहियात न खत्म करने पाया था कि इमाम तीसरी रकत के लिए खड़ा हो गया तो मुक्तदी पर वाजिब है कि अपनी अत्तहियात पूरी करके खड़ा हो अगरचे देर हो जाए। मुक्तदी ने रुकू या सजदे में 3 बार तस्बीह न कही थी कि इमाम ने सर उठा लिया तो मुक्तदी भी सर उठा ले और बाकी तस्बीह छोड़ दे। जिस शख्स ने भूल कर कादा उला न किया और तीसरी रकत के लिए खड़ा हो गया तो अगर अभी इतना खड़ा हुआ कि कादा के करीब है तो बैठ जाए और कादा करे, नमाज सही है। सजदा सहव भी लाजिम न आया और अगर इतना खड़ा है कि खड़े होने के करीब हो गया तो फिर खड़ा ही हो जाए और वापस ना लौटे, आखिर में सजदे सहव करे। अगर कादा आखिर करना भूल गया और खड़ा हो गया तो जब तक इस रकत का सजदा न किया हो उसे छोड़ दे और बैठ जाए और नमाज पूरी करे और सजदे सहव करे। और अगर इस रकत का सजदा कर लिया हो तो फर्ज नमाज जाती रही। अगर चाहे तो 1 रकत और मिलाए सिवा मगरिब के और यह कुल नफल हो जाएगी। फर्ज फिर पढ़े। अगर कादे आखिर बकदरे तशहुद करके भूल से खड़ा हो गया तो बैठ जाए जब तक इस रकत का सजदा न किया हो और बैठकर सलाम फेरे और सजदे सहव करे। और अगर इस रकत का सजदा कर लिया तो फर्ज जब भी पूरी हो गया लेकिन 1 रकत और मिलाए और सजदे सहव करे, यानी दोनों रकतें नफल हो जाएंगी लेकिन मगरिब में न मिलाए। 1 रकत में 3 सजदे किए या 2 रुकू किए या कादे उला भूल गया तो सहव का सजदा करे। कयाम व रुकू व सुजूद व कादे आखिरा में तरतीब फर्ज है, लिहाजा अगर कियाम से पहले रुकू कर लिया फिर क़याम किया तो ये रुकू जाता रहा। अगर क़याम के बाद फिर रुकू करेगा तो नमाज हो जाएगी वरना नहीं। इसी तरह रुकू से पहले सजदा करने के बाद अब रुकू किया, सजदा कर लिया तो नमाज हो जाएगी। क़याम व रुकू व सुजूद व कादा आखिरा में तरतीब फर्ज है, यानी जिसको पहले होना चाहिए वो पहले हो और जिसको पीछे होना चाहिए वो पीछे हो। अगर पहले का पीछे और पीछे का पहले कर लिया तो नमाज न होगी। जैसे किसी ने रुकू से पहले सजदा कर लिया तो नमाज न हुई। हाँ, अगर सजदा के बाद दोबारा रुकू और फिर सजदा करे यानी तरतीब वार कर ले तो नमाज हो जाएगी वरना नहीं। इसी तरह अगर क़याम से पहले रुकू कर लिया तो नमाज न हुई, अलबत्ता क़याम के बाद फिर रुकू करे तो हो जाएगी। नफल का हर कादा आखिरा है, यानी फर्ज है। अगर कादा न किया और भूल कर खड़ा हो गया तो जब तक रकात का सजदा न किया हो लौट आए और सजदे सहव करे। और वाजिब नमाज मसलन वितर फर्ज के हुक्म में है, लिहाजा अगर वितर का कायदा उला भूल जाए तो वही हुक्म है जो फर्ज के कायदे उला भूलने का है। दुआए कनूत या तकबीर कुनूत भूल गया तो सजदे सहव करे। तकबीर कुनूत से मुराद वह तकबीर है जो रकत के बाद दुआए कुनूत पढ़ने के लिए कही जाती है। ईदैन की सब तकबीरें या बाज भूल गया या जायद कही या गैर महल में कही, इन सब सूरतों में सजदे सहव वाजिब है। सजदे तिलावत क्या है? यह वह सजदा है जो आयत सजदा पढ़ने या सुनने से वाजिब हो जाता है। इसका मसनून तरीका यह है कि खड़ा होकर अल्लाह अकबर कहता हुआ सजदा में जाए, कम से कम 3 बार सुभान रब्बियल आला कहे, फिर अल्लाह अकबर कहता हुआ खड़ा हो जाए। सजदे तिलावत का मसनून तरीका। सजदे तिलावत में पहले पीछे दोनों बार अल्लाह अकबर कहना सुन्नत है और पहले खड़े होकर फिर सजदा में जाना और सजदा के बाद खड़ा हो जाना, यह दोनों क़याम मुस्तहब है। अगर सजदे तिलावत से पहले या बाद में खड़ा ना हुआ या अल्लाह अकबर ना कहा या सुभान रब्बियल आला ना पढ़ा
तो भी सजदा अदा हो जाएगा, मगर तकबीर छोड़ना न चाहिए कि सल्फ के खिलाफ है। सजदे तिलावत के लिए अल्लाह अकबर कहते वक्त न हाथ उठाना है, न उसमें तशहुद है, न सलाम। कुरान शरीफ में 14 आयत सजदे तिलावत की हैं। इनमें से जो भी आयत पढ़ी जाएगी, पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों पर सजदा वाजिब हो जाएगा, चाहे सुनने वाले ने सुनने का इरादा किया हो या न किया हो। सजदे तिलावत के शरायत। सजदे तिलावत के लिए तहरीमा के सिवा तमाम वह शरायत है जो नमाज के लिए है, मसलन तहारत, इस्तकबाल किबला, नियत, वक्त, सत्र औरत। लिहाजा अगर पानी पर कादिर है तो तयम्मुम करके सजदा जायज नहीं। अगर आयत सजदा नमाज में पढ़े तो सजदा तिलावत फौरन करना नमाज ही में वाजिब है। अगर देर करेगा गुनाहगार होगा। देर करने से मुराद 3 आयत से ज्यादा पढ़ लेना। लेकिन अगर सूरत के आखिर में सजदा वाक़े हुआ तो सूरत पूरी करके सजदा करेगा, जब भी हर्ज नहीं। मसलन सूरह इनकिशाफ में सूरह खत्म करके सजदा करे, जब भी कुछ हर्ज नहीं। सजदा की आयत नमाज में पढ़ी और सजदा करना भूल गया तो जब तक हुर्मत नमाज में है सजदा कर ले, अगरचे सलाम फेर चुका हो और सजदे सहव भी करे। नमाज में आयत सजदा पढ़ी तो उसका सजदा नमाज ही में वाजिब है, नमाज के बाहर नहीं। हो सकता है अगर कसदन नहीं किया तो गुनाहगार हुआ, तौबा लाजिम है, जबकि आयत सजदा के बाद फौरन रुकू व सुजूद न किया हो। जो चीज नमाज को फासिद करती है इससे सजदे तिलावत भी फासिद हो जाएगी, जैसे हद से अमद व कलाम व कहकहा। आयत सजदा लिखने या उसकी तरफ देखने से सजदा वाजिब नहीं। सजदा वाजिब होने के लिए पूरी आयत पढ़ना जरूरी नहीं, बल्कि वह लफ्ज जिसमें सजदा का मादा पाया जाता है वह और उसके साथ कब्ल या बाद का कोई लफ्ज मिलाकर पढ़ना काफी है। आयत सजदा की हिज्जे करने या हिज्जे सुनने से सजदा वाजिब न होगा। आयत सजदा का तर्जमा पढ़ा तो पढ़ने वाले और सुनने वाले पर सजदा वाजिब हो गया, चाहे सुनने वाले ने यह समझा हो या न समझा हो कि आयत सजदा का तर्जमा है। अलबत्ता पढ़ी गई हो तो इसकी जरूरत नहीं कि सुनने वाले को आयत सजदा होना बताया गया हो। हैज व निफास वाली औरत ने आयत सजदा पढ़ी तो खुद उस पर सजदा वाजिब न होगा, अलबत्ता और सुनने वालों पर वाजिब हो जाएगा। हैज व निफास वाली पर आयत सजदा सुनने से भी सजदा वाजिब नहीं होता, जैसे कि पढ़ने से नहीं होता। जुरूब ने या बेवजू ने आयत सजदा पढ़ी या सुनी तो सजदा वाजिब है। नाबालिग ने आयत सजदा पढ़ी तो सुनने वाले पर सजदा वाजिब है, नाबालिग पर नहीं। इमाम ने आयत सजदा पढ़ी और सजदा न किया तो मुक्तदी भी उसकी पैरवी में सजदा न करेगा, अगरचे आयत सुनी हो। जिस वक्त आयत सजदा पढ़ी गई अगर उस वक्त किसी वजह से सजदा न कर सके तो पढ़ने वाले और सुनने वाले को यह कह लेना मुस्तहब है, समयना व अताना गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर। पूरी सूरत पढ़ना और सजदे और आयत छोड़ देना मकरूह तहरीमी है। एक मजलिस में सजदा की एक आयत को बार बार पढ़ा या सुना तो एक ही सजदा वाजिब होगा, अगरचे चंद आदमियों से सुना हो। यूं ही अगर एक आयत पढ़ी और वही आयत दूसरे से भी सुनी, जब भी एक ही सजदा वाजिब होगा। मजलिस बदलने की सूरतें। 2 एक लुकमा खाने से, 2 एक घूंट पानी पीने से, खड़े हो जाने से, 2 एक कदम चलने से, सलाम का जवाब देने से, 2 एक बात करने से, घर के एक कोने से दूसरे कोने की तरफ चलने से मजलिस न बदलेगी। हाँ, अगर मकान बड़ा है जैसे शाही महल तो ऐसे मकान के एक कोने से दूसरे कोने में जाने से मजलिस बदल जाएगी। कश्ती में है और कश्ती चल रही है तो मजलिस न बदलेगी। रेल का भी वही हुक्म होना चाहिए। जानवर पर सवार है, जानवर चल रहा है तो मजलिस बदल रही है। हाँ, अगर सवारी पर नमाज पढ़ रहा है तो न बदलेगी। 3 लुकमा खाने, 3 घूंट पानी पीने, 3 लफ्ज बोलने, 3 कदम मैदान में चलने, निकाह करने, खरीद व फरोख्त करने, लेट कर सो जाने से मजलिस बदल जाएगी। किसी मजलिस में देर तक बैठना, किरत, तस्बीह, तहलील, दर्स, वाज में मशगूल रहा, मजलिस को नहीं बदलेगा। अगर दोनों बार आयत सजदा पढ़ने के दरमियान कोई दुनिया का काम किया, मसलन कपड़ा सीना वगैरह, तो मजलिस बदल गई। अगर सुनने वाले सजदे के लिए आमादा हो और सजदा उन पर बार न हो तो आयत सजदा जोर से पढ़ना बेहतर है, वरना आहिस्ता पढ़े। और अगर सुनने वालों का हाल मालूम नहीं कि आमादा है या नहीं, जब भी आहिस्ता पढ़ना बेहतर होना चाहिए। मर्ज की हालत में इशारे से भी सजदा अदा हो जाएगा, यूं ही सफर में सवारी पर इशारे से हो जाएगा। इसका वही तरीका है जो सजदे तिलावत का है। औलाद पैदा हुई या माल पाया या खोई हुई चीज मिल गई या बीमार ने तंदुरुस्ती पाई या मुसाफिर वापस आया या कोई नेमत मिली तो सजदे शुक्र करना मुस्तहब है।